درندے کو کھانا مل رہا ہے, پینا مل رہا ہے, میرے بچوں کو تو کیا پتا اس نے پانی بھی نہ پینے دیا. صفاق باپ نے اپنی ہی اولاد کو زہر کی گولیاں کھلا کر ابدی نیند سلا دیا. عبدالحکیم خانیوال کے شیراز شاہ نے 2 دن قبل اپنی بیوی کو دی تھی کیا دھمکی. اپنی ہی اولاد کے قاتل 38 سالہ شیراز شاہ نے اپنی بیوی پر لگائے کیا کیا الزامات, یہ سب کو جانیں گے آج کے پروگرام میں. میں ہوں علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں مجرم. عبدالحکیم میں موجود ہیں اور یہاں پر انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آتا ہے. 31 اکتوبر کی شام کا یہ واقعہ ہے. ایک باپ اپنے ہی بچوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کر دیتا ہے. والدہ موجود ہیں, صوبیہ بی بی, بات کریں گے اس حوالے سے. کیا لڑائی ہوئی تھی, کیا معاملہ تھا, کیا تنازع تھا, اور اس سے ایک دن پہلے جو تنازع ہوا تھا وہ کس بات پر ہوا تھا, اور وہ شخص آخر کیسے یہاں تک پہنچا کہ اپنے ہی بچوں کو اپنے ہاتھ سے اس نے قتل کیا ہے. صوبیہ بی بی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ مجھے بتائیں صوبیہ بی بی, کیا معاملہ ہوا تھا؟ لڑائی جھگڑے پہلے بھی ہو رہے تھے آپ کی شادی کو تقریباً 10-11 سال ہو گئے. بات کوئی بھی نہیں ہوتی تھی, بلا وجہ الزام لگانا, بلا وجہ کچھ. صبح تالا لگا کے جاتے تھے, رات کو آ کے خود کھولتے تھے, پھر بھی مجھے ٹارچر کرتے تھے بچوں کے لیے. اگر تم اپنے خاندان سے ملی, ماں باپ سے ملی, کسی سے ملی, میں آپ کے بچوں کو آپ کو مار ڈالوں گا. میں نے کسی سے ملنا سب سے چھوڑ دیا, سب کو روک دیا. میرے گھر سوائے سسرال کے میکے والے نہیں آتے تھے. اس دن جو لڑائی ہوئی ہے آپ کی, تمام بچے آپ کے گھر پر تھے؟ کتنے بچے تھے گھر پر؟ نہیں, 2 بچے اسکول گئے ہوئے تھے. تیسری چھوٹی دعا فاطمہ کو میں اسی ٹائم لے کے آئی تھی, قریب اسکول میں جاتی تھی. 2 بچوں کو بھی آدھا گھنٹہ پڑھا تھا. اور جو بینش نام کی بیٹی ہے, یہ اس کو اس دن اس کا دن نہیں تھا. اور یہ ایمن ہے, یہ ڈگری کالج تھی. تو بچوں کو پڑھا بھی رہی ہیں آپ, اور خود سے کرتے ہیں خرچے وغیرہ؟ میں خرچہ وغیرہ خود سے کرتی ہوں. دل کرتا تھا تو کام کرتے تھے, نہیں دل کرتا تھا تو نہیں کرتے تھے. ان کی کمائی کا مجھے نہیں پتا کہاں جاتی تھی کہاں نہیں. 5 بچوں کو آپ خود سے پال رہی تھی؟ خود سے محنت کر کے خود سے. اچھا, اس دن کیا بات ہوئی تھی آپ؟ اس دن کچھ بھی بات نہیں ہوئی. میرے بھائی گئے ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کو منانے آئے ہیں. پہلے میری بہنیں آتی رہی ہیں, ان کو ہنسی خوشی کہے کہ نہیں میں نے آنا کوئی نہیں, بس کھانا وغیرہ کھاؤ چلی جاؤ. میں اس دوران کچھ بھی نہیں بولی, میں خاموش ہوں. مجھے انہوں نے ایک ہی بات کر دی تھی کہ آپ ان کے لیے مر گئی ہو. میں چپ کر کے یہ باتیں سنتی رہی. نہیں, کوئی آپ کے بھائیوں کے ساتھ کوئی تنازع ہوا تھا, کوئی لڑائی ہوئی تھی, کوئی معاملہ تھا اس طرح کا, کوئی لین دین کا تھا, کس وجہ سے؟ کسی قسم کا بھی کوئی نہیں تھا. میں جب بائک پہ بیٹھی تب بھی مجھے کہتے پریشان نہ ہو, میں لے کے آ رہا ہوں. پہلے بھی لے کے آتے تھے ہر ہمارے دکھ سکھ میں. میں نے کہا اب بھی لے کے آئیں گے. مجھے نہیں پتا تھا کہ اب انہوں نے کیا سوچا. کہ گھر جاتے تھے پہلے؟ دیکھیں, ہم کبھی نہیں گئے تھے, کیونکہ سسٹر جب بھی آتی تھیں وہ ہمیں منع کرتی تھی کہ ہمارے گھر نہ آؤ. ٹھیک ہے, آپ آتے ہو. پہلے 1 ایئر پہلے ہم جاتے تھے کبھی کبھار, وہ بھی کبھی کبھار. تو کہتی آپ آتے ہو تو ہمارے گھر بڑا فساد, لڑائی جھگڑا ہوتا ہے, آپ لہٰذا نہ آیا کریں. کبھی کوئی بات ہوئی, کوئی لڑائی ہوئی, کوئی تنازع ہوا شیراز کے ساتھ؟ نہیں, کبھی نہیں ہوا. وہ اس لیے کہ وہ بچوں پہ تشدد کرتے تھے. ہم اس کو ایک بار میں نے منع کیا تھا, بھائی آپ نا بچوں پہ تشدد نہ کیا کریں. تو وہی اسے برا فیل ہو گیا کہ میرے بچوں پر تشدد کرنے سے تم کیسے روک سکتے ہو, اس بات پر ہوا تھا؟ جی, اس بات پہ بس پھر وہ دل میں رکھ گئے نا. تو اس کے بعد سسٹر آتی تھی, وہ خود منع کرتی تھی کہ آپ ہمارے گھر نہ آئیں, آپ کے آنے پہ ہمارے گھر میں لڑائی کھڑی ہوتی ہے, آپ لہٰذا مہربانی کیا کریں. ہم کبھی نہیں گئے تھے, کبھی بھی نہیں گئے تھے ان کے گھر. آپ کی بہن نے کبھی آپ کو بتایا نہیں کہ اس طرح کا معاملہ ہے, تشدد کا نشانہ بناتا ہے؟ کیونکہ وہ آپ کی بہن کو بھی کئی دفعہ تشدد کا نشانہ بناتا رہا ہے. نہیں جی, آج تک ہمیں اس بات کا پتہ نہیں چلا. ٹھیک ہے, اگر کبھی کبھار وہ خوشی سے بھیج دیں بھئی 3 منتھ بعد, 4 منتھ بعد کے 5 منٹ کے لیے اپنے بہن بھائی کو سلام دعا کر کے آ جائیں. ٹھیک ہے, وہ 1 منٹ 5 منٹ کے لیے گھر آتی تھی اور سلام بڑی خوشی چہرے پہ رکھتی تھیں. سلام دعا کر کے انہوں نے آج تک
اپنا دکھ ظاہر نہیں کیا تھا, ہمیں نہیں بتایا تھا کہ چپ کر کے برداشت کر رہی تھیں ایک بچوں کی خاطر. ہاں جی. آپ لینے گئے تھے اپنی بہن کو, جی جی, جب آپ کی دوسری بہن کی ہاں شادی تھی, جی آپ جی. لینے گئے تھے, اس وقت وہ شخص موجود تھا وہاں پر؟ جی وہاں پہ موجود تھا. اس کو میں نے یہ بھی بولا کہ ہم آپ کو بھی منانے آئے ہیں اور آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں, ٹھیک ہے. تو بولتا ٹھیک ہے آپ ان کو لے جائیں ہیں. تو میں ٹھیک آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹے بعد میں آپ کے پاس آ رہا ہوں وہیں شادی پہ. میں نے کہا ٹھیک ہے. اس وقت کوئی جھگڑا نہیں تھا, نہیں, کوئی اس وقت تنازع نہیں کوئی تھا, تنازع نہیں تھا, اس نے جانے دیا مطلب, ٹھیک ہے. تو آپ آئے ہیں, آپ کے واپس آپ لے کر آئے ہیں جی صوبیہ کو, اپنی بہن کو, اور اس کی بچیوں کو بھی لے کر آئے تھے ساتھ, جی بڑی بچیوں کو. جی بڑی کو لے کے آیا تھا میں کالج سے. تو بعد میں وہ بولتا بھی میں پیچھے اپنے 3 بچے جو ہیں نا وہ چھوٹے, وہ بھی اسکول تھے, ٹھیک ہے, ان کو لے کے میں آ رہا ہوں شادی پہ, ٹھیک ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. ہم بالکل مطمئن ہو گئے تھے بھئی وہ آ جائیں گے, ٹھیک ہے. تو ان کو میں نے پھر کال کی, میں نے کہا بھائی آپ نہیں آئے. تو بولتے میں آ رہا ہوں, صرف آدھے گھنٹے میں نا وہ کپڑے میں نکال رہا ہوں بچوں کے, تیاری وغیرہ کروا کے, تو میں آ رہا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو پھر ہم شادی میں مصروف ہو گئے, تو پھر وہ نہیں آیا. رات کو مجھے کال کر کے بولتا کہ آ جاؤ. میں نے کہا اچھا. وہ نا وہ رات اس نے خود کی تھی؟ رات اس نے خود کی تھی. کیا کہا تھا؟ کہ آپ آؤ ذرا, بچوں کی کنڈیشن لوز ہوئی پڑی ہے. تو میں اس نے یہ واردات اسی رات کر دی, اسی رات مجھے لگتا ہے کرنے کے بعد آپ کو کال کر رہا تھا کہ آ جاؤ اور بچوں کو دیکھ لیں. اچھا. اس کے بعد نا میں ٹینٹ والوں کے مطلب وہ سامان کلوز کروانے میں لگا رہا, ٹھیک ہے. رات گزر گئی, دن کو پھر مجھے بلا رہا ہے, جبکہ بلانے کی یہ وجہ تھی کہ اس نے ساتھ میں دروازے کے ساتھ ایک تیز چھری رکھی ہوئی تھی. اچھا. بالکل تیز چھری. اس نے سوچا بھئی یہ بھی آئے گا, اس کو بھی میں مار دوں گا, ٹھیک ہے. تو اس دن مطلب کہ میں نہیں گیا. آپ اس رات نہیں گئے جس رات اس نے کال کی تھی, لیکن آپ لوگ اگلے دن گئے ہو. اگلے دن بھی مطلب نا میں ولیمے پہ گیا ہوں, اس کے بعد میں آیا ہوں گھر. تو تب ہم نے جا کے نا ادھر ہمارے کزن کو چابی دے گیا شام کو, کہتا ہے یہ چابی ہے اپنا سنبھال لو گھر جا کے. پھر ہم گئے ہیں, ہم نے دیکھا ہے اور یہ کنڈیشنیں ڈیڈ باڈیاں پڑی تھی بس. تو 2 چارپائیاں موجود تھی, ایک پر اس کے بیٹے کی ڈیڈ باڈی پڑی تھی اور ایک پر اس کی 2 بیٹیوں کی. تو ان کے اوپر جو ہے اس نے رضائیاں ڈالی ہوئی تھی. تو جب نیچے ان کو نیچے کیا رضائیوں کو, تو اس کے منہ سے جھاگ آ رہی تھی. اس وقت تینوں بچوں کے منہ سے جھاگ آ رہی تھی. ایک ہی صورتحال تھی تینوں بچوں کی؟ جی ایک ہی صورتحال تھی. تو ہم نے فوراً ڈیڈ باڈی جو ہے ہسپتال بھجوائیں. تو ہسپتال بھجوانے کے بعد ہم فوری طور پر اس کے پیچھے میں نے ٹیمیں روانہ کر دیں. تو ہم نے آئی ٹی کی مدد سے اس کی لوکیشن جب لی تو وہ ہارون آباد کی آئی. اس وقت جائے وقوع سے کچھ چیزیں ملی تھیں کہ اس نے کیا دیا تھا, کیا کھانا دیا تھا, یا کچھ اور کیا تھا, یا تشدد بھی کیا اس نے بچوں کے اوپر؟ نہیں, اہل محلہ بتاتے ہیں کہ وہ اکثر اپنی بیوی اور بچوں کو ہمیشہ جو ہے ٹارچر کرتا تھا. تو اس دن جو ہے کہ بیوی جو ہے اپنے میکے چلی گئی تھی بہن کی شادی پر. تو وہ چاہتا تھا کہ تم ادھر نہ جاؤ, مگر وہ بضد تھی. تو اس نے پھر ان کو وارننگ کی تھی کہ تم آؤ گی تو تمہارے بچے یہاں آپ کو نہیں ملیں. اچھا, یہ بات اس نے پہلے کہی تھی؟ اس کے جانے سے پہلے اس نے یہ بات کر دی تھی, اور وہی کیا اس نے؟ اور وہی اس نے کیا. تھانہ عبدالحکیم شیراز اس شخص کا نام ہے, اور قتل کیا ہے اپنی ہی اولاد کو, اپنے ہی بچوں کو. شادی کب ہوئی تھی تمہاری؟ 2010 میں. 10 سال ہو گئے. جی 10 سال پہلے تمہاری شادی ہوئی, اور پسند کی شادی تھی؟ ہیں جی. تمہارا جھگڑا ہوا تھا اپنی بیوی کے ساتھ, کس بات پر ہوا تھا؟ بات تھی اس کی سالے کی, یعنی کہ بہن کی شادی تھی اس کی, اس وجہ سے ہوئی تھی لڑائی. اچھا. تو اس نے اپنے بھائی کو بلایا, اس نے دھمکیاں دی, اور اس نے کہا کہ میں یہاں سے اپنے جا رہی ہوں, یہ اپنے 3 بچے کس پکڑ. چیز کی دھمکیاں دی؟ کہ ہم تجھے ماریں گے, جان سے مار دیں گے, تو اپنے بچے پکڑ. اچھا. اس وجہ سے. کیوں ماریں گے وہ؟ گھر میں گھریلو بھائی تو ایسے لگتے ہی نہیں ہیں کہ وہ دھمکیاں دیں. دھمکیاں دی ہیں. اچھا, دھمکیاں دی ہیں. ساتھ ان کا ایک بینوئی ہے. اچھا. اس نے. اچھا. اور آ کے میری بیوی لے کے چلے گئے ہیں, اور 3 بچے جو میرے میں سے ہیں وہ چھوڑ گئے ہیں. اس سے پہلے اس کی پہلی شادی بھی ہے جس میں 2 لڑکیاں ہیں. اچھا, یہ تو تمہیں پتا تھا نا پہلے اس کی شادی تھی, ہمارے اس کے بعد ہی تم نے شادی کی. ہمارے خاندان اس کے ساتھ ہی تم نے کی. بڑی بیٹی فاطمہ. جی. 9 سال اس کی عمر تھی. جی. اسکول جاتی تھی وہ؟ ہاں جی. اسے تشدد بھی کیا تم نے؟ پہلے مارا اسے؟ نہیں. اس کے بازو پہ نشان ہے.
नहीं। मारा कैसे था तीनों बच्चों को? गोलियां दी थी, चूहे मार। बाप हो तुम? उन बच्चों के बाप हो हैं? बस गलती हो गई। ये उस गलती वक्त गुस्से में था, नहीं किस पता चीज का चला। क्या गुस्सा था? वो अपने घर चली गई है, अपनी बहन की शादी पर गई है, और तुम्हें गुस्सा किस चीज का था? इससे पहले 2 दिन पहले से हमारी लड़ाई चल रही थी, उसके कोई खातिर लड़ाई तुम्हारी पहले चल रही थी अपनी बीवी के साथ, मारा है तुमने अपने बच्चों को, अपनी औलाद को। हमारी लड़ाई यही थी कि उसके पहले खावन के खत मिले और कोई कार्ड हैं, कोई तस्वीरें हैं ऐसी नंगी, जिस वजह से हमारी लड़ाई चल रही थी। तुम झूठ बोल रहे हो। ऐसी कोई चीज होती तो अब तक तुम सामने पेश करते। कोई चीज आई है सामने ऐसी? नहीं, कोई चीज़ ऐसी नहीं है। झूठ बोल रहा है, इल्जाम लगा रहा है। बिल्कुल झूठ बोल रहा है। एक तुम इतनी सफाकी तुमने की है, अपनी औलाद को तुमने अपने हाथ से कत्ल किया है, उसके बाद तुम इल्जाम लगा रहे हो अपनी बीवी के ऊपर। तुम पहले भी तशद्दुद करते थे उसके ऊपर। लड़ाई झगड़ा तो घर में होता ही था। इसका मतलब है मारते रहो उसे, तशद्दुद करते रहो। ताला लगा कर तुम जाते थे, चाबी तुम्हारे पास होती थी, अपनी मर्जी से जब तुम आते थे तभी ताला तुम खोलते थे, उसके अलावा इजाज़त नहीं थी उस औरत को घर से बाहर जाने की। क्यों करते थे ऐसा? उसकी अपनी मर्जी भी होती थी, इसमें मेरी मर्जी नहीं होती थी। जाग निकली हुई थी मुंह से, तब पता चल गया और भाई की साफ की हुई थी। गोलियां ली हैं जो नशावर गोलियां, और साथ उसने गंदम की गोलियां ली हैं, बाद में उसने आके जो बच्चों को खिलाई हैं। खामद की इज्जत करती रही, कदर करती रही, मुझे क्या मिला? मेरे बच्चे उसने बेरहम ने मार डाले। आज 5 दिन हो गए हैं वो बेरहम जेल में खड़ा है। मैं हुकूमत को देख रही हूँ वो क्या कर रहे हैं। माँ से सुना तो मेरा दिल करता है मैं उसके इतने टुकड़े करूँ, इतने दुनिया में किसी के नहीं किए होंगे। कानून में जितने जुल्म है उस बंदे के साथ करे, मेरे दिल को सुकून ने फिर भी नहीं आएगा। मेरी औलाद ने वापस नहीं आना। जिन औलाद को मैंने हाथों से पाला, जिनको मैंने पढ़ाया, जिनको इन हाथों से कमा कमा के खिलाया। मेरे ऑपरेशन होते थे, ऑपरेशन मेहनत की वजह से फट जाते थे। मेरी जान थी मेरे बच्चे, मुझे जो मेहनत देते थे मैं करती। मैंने खुद हाथ जोड़ के हर बंदे को कहती थी ये देखो मैंने घर बसाना है, मेरे बच्चे हैं, मेरे घर कोई ना आए, मुझे सिर्फ हुकूमत से इंसाफ चाहिए। मैं 5 दिन से देख रही हूँ, दरिंदे को खाना मिल रहा है, पीना मिल रहा है, मेरे बच्चों को तो क्या पता उसने पानी भी ना पीने दिया, क्या पता वो प्यास से मरे हो। आज से 2 साल से पहले रोका था उन्होंने। क्या रोका था? क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि तेरी हमें यहाँ ज़रूरत नहीं है, तू अपने घर में रहो, अपने बच्चों के पास रहो, जैसे मर्जी रहो। मैं 3 साल पहले, अपना 2 साल पहले 3 माह के लिए छोटे बच्चे मेरे ही साथ हैं। उन 2 बच्चियाँ उनके पास थी, बड़ी जो पहले ही थी वो उनके पास थी, जो 3 तो वो मुझे दे जाते थे। इन्हीं 3 की लड़ाई होती थी। तू 3 के साथ प्यार रखता है, 2 के साथ नहीं रखता, 3 के साथ प्यार रखता है, 2 के साथ नहीं रखता। करते क्या हो तुम? ड्राइवर हो, कितना कमाते थे? दूध वाली गाड़ी चलाते, दूध वाली गाड़ी चलाते। कितना कमा लेते थे? 16-17 हज़ार। उससे घर का खर्चा चल जाता था, या तुम कहीं और अयाशी में लगाते थे? आसिया कौन है? आसिया मेरी चाची है। हाँ? चाची है मेरी। क्या किरदार है इस सारी सूरत हाल में? इस प्लानिंग में कोई और भी शामिल था तुम्हारे साथ? तुम्हारे भाई, इसमें तुम्हारा कोई वालिद? किसमें कोई और भी नहीं शामिल, कोई बंदा भी नहीं शामिल। अच्छा, जो आसिया है, खराफात थे तुम्हारे, जो आसिया है वो थे। उससे आसिया और मेरी बीवी की ये लड़ाई है कि वो 2 साल पहले 3 महीने मैं उनके घर रहा हूँ, मेरे बच्चों की उन्होंने देखभाल की है, उन्होंने एक एहसास किया, वो शुरू से ही उन लोगों ने मुझे पाला है। तुम्हारे जहन में आती हैं वो चीज़ें? बिल्कुल आती हैं। वो मासूम बच्चे नहीं आते थे तुम्हारे जहन में? आते हैं। आते हैं, ये अफसोस है इस बात का बहुत। लेकिन तुम्हारी शक्ल से नहीं लग रहा कि तुम्हें अफसोस है किसी बात का भी। रिठाई तुम्हारी शक्ल से नजर आ रही है, कितने डीठ हो तुम। बाप का क्या मकाम है, क्या दर्जा है, पता है इस बात का? ख्याल आता है तुम्हें कि तुमने क्या किया है? आता है ख्याल। कोई अफसोस होता है, कोई दुख होता है? बहुत अफसोस होता है। भावलपुर है अब्दुल हकीम की वो बस्ती और वो घर जहाँ पर ये अफसोसनाक सानिया पेश आता है। घर में मौजूद हैं, कमरा मेरे पीछे है जहाँ पर ये वाक़या पेश आता है। एक चारपाई यहाँ पड़ी थी और एक चारपाई यहाँ पड़ी थी, यहाँ 2 पेटियाँ रखी हुई थी।
बच्चे लेटे हुए थे, बच्चों के ऊपर उन्होंने रज़ाई, दोनों बच्चों के ऊपर, तीनों बच्चों के ऊपर 2 रज़ाइयाँ डाली हुई थी। जब हमने देखा तो बच्चों के मुंह से सफ़ेद झाग निकल रही थी और बच्चे बिल्कुल, उनके जिस्म सख्त हो गए थे, बच्चे बेसुध पड़े थे। जब हमने चेक किया तो पता कोई चला होश नहीं था, कोई जान नहीं थी, कोई सांस बच्चों नहीं की था। उस टाइम डेथ हो चुकी थी। डेथ को कितना टाइम गुजर शक्ल चुका से था? लग रहा था कि बच्चों की डेथ हुए कई घंटे गुजर गए, सही, यानी अंदाज़न 10-15 घंटे से ज़्यादा। ये जहाँ आप खड़े हैं, इस जगह एक चारपाई उसने रखी हुई थी और एक चारपाई यहाँ पड़ी हुई थी, ऊपर रज़ाइयाँ थी। उसका मकसद बताने का सिर्फ ये था कि भाई जो अगर कोई आदमी अंदर दाखिल हो तो पता चले कि बच्चे सो रहे हैं, लगे ये कि बच्चे सो रहे हैं। रास्ता यही है घर का? जी, ये घर का यही रास्ता है। कमरा अभी डाला था ये? अभी ये मसला बनने से 10-12 दिन पहले डाला है। आपका घर साथ है? ये क्या बारा है? तो इनके घर में झगड़ा हो रहा है, बच्चों पे तशद्दुद हो रहा है, इस तरह का मामला होता था? यार ये साथ वाला घर है ना, हाँ। ये हमें रोजाना बताते थे कि ये अपनी बीवी को तशद्दुद कर रहा है, मार रहा है, पीट रहा है रोजाना। अच्छा। ये मामूल बना हुआ था। सही। क्या था? कुछ दिमागी तवाज़ुन उसका दुरुस्त नहीं था? क्या था मामला अगर उसके साथ? दिमागी तवाज़ुन खराब होता तो वो घर के अखराजात यानी बर्फ, दूध वगैरह वगैरह डेली ले आता था। अच्छा, तो इधर आके घर वाली को मारता पीटता था रोजाना। किस बात पर मारता ये था? पता नहीं क्यों मारता था। अच्छा, अहले इलाका जब ये सुनते थे बातें, आपने कभी बात की? आप लोग बड़े जो होते वो हैं, पूरे मोहल्ले मोहल्ले वाले, में किसी से बात करके राजी नहीं था। सबसे लड़ाई थी उसकी, सबसे लड़ाई झगड़ा नहीं था? थी, वो बोलता ही नहीं था किसी के साथ। ये सामने जी साथ मैं जब छिड़काव करता हूँ ना गली में, वो मुझे कहता था इधर मेरे दरवाजे पर छिड़काव नहीं करना तूने, मैं बुरा पेश होऊंगा। जो एनी शाहीन बताते हैं कि वो बाज़ार गया है, उसने बोतल ली है, बिस्किट लिए हैं, कुछ गोलियां ली हैं जो नशावर गोलियां। अच्छा। और साथ उसने गंदम की गोलियां ली हैं, बाद में उसने आके जो बच्चों को खिलाई हैं और उसने खीर बनाई है जिसमें उसने वो गोलियां डाली। सारा दिन यहाँ फिरता रहा है कि बच्चे, उसे पता चल गया कि बच्चों की डेथ हो गई है, तो उसकी जो कैफियत है थोड़ी डिस्टर्ब हो गई थी, चेहरे से वहशत थी। वैसे नॉर्मल आदमी था, कोई ज़हनी मरीज़ नहीं था, लेकिन खुद पसंद था, लोगों से मेल जोल रखना पसंद नहीं करता था। सही, और सही। अक्सर गली में जब लोग लड़ाई झगड़ा रहता था। हाँ, जब गली में लोग देखते थे तो बच्चे इसके अंदर होते थे और ताला वगैरह लगा के। ये सारी वारदात, और खीर बनाई थी तुमने, क्या किया था? चूहे मार गोलियाँ थी, वो पहले वैसे दूध में डाली थी, तो वो फिर खीर आ गई, फिर खीर में हमने डाल के। खीर कहाँ से आई थी? खीर खुद भी घर में भी पकी हुई थी, वैसे भी बाहर से भी चीज़ें आई थी, कोई चावल आए थे, कोई खीर थी, कोई ऐसी चीज़ें थी घर में। क्या चल क्या रहा था तुम्हारे जहन में? बच्चों के खिलाफ क्या चल रहा था उस वक्त? अपनी बीवी से बदला लेना है, ये चल रहा था तुम्हारे दिमाग में? उसे तुमने जाते ये कहा था, ये बात तुमने की थी कि तुम अगर अपने भाई के साथ चली गई तो तुम्हारे बच्चों को मैं मार दूंगा, ये बात तुमने कही थी पहले? ये बात उसने मुझे कही थी कि जी तू यहाँ से अगर ये अपने 3 बच्चे पकड़ दो, जो धमकी की बात है उसके भाई की वो यही है। उसने कहा था कि ये अपने बच्चे पकड़, नहीं तो बच्चे भी तू दफ़ा हो जाए, या तुझे भी मार देंगे, तेरी हर चीज़ ख़त्म कर देंगे। जो दूसरे के हाथों से मरना, वो मैंने अपने हाथों से ही अपने आप को सालों को ख़त्म कर दिया। सही किया तुमने, ठीक किया। गलत किया। उस टाइम मुझे जो गुस्सा चढ़ा, जो दिमाग में बात आई, वो मैंने ये किया। उसके बाद कहाँ गए थे? उसके बाद मैं मुल्तान गया था, उसके बाद फिर मैं रोड पे ही फिरता रहा। मैं मुल्तान गया, मुल्तान से हदूनाबाद गया, हदूनाबाद से जी मैं मुजफ्फरगढ़ गया, मुजफ्फरगढ़ से जी मैं मेलसी आया, तो फिर मुल्तान गया, ऐसे बसों पे ही फिरता रहा। कभी सुना है कि बाप अपने बच्चों को मारता है? कभी सुना है? अपने हाथों से कत्ल करता है? ये तो जानवर भी नहीं करते। कभी जानवर देखे हैं ऐसे कि अपनी औलाद को मार रहे हो अपने हाथों से? किसी और के साथ हो ना हो, लेकिन औलाद, सकी औलाद से तो होता ही है प्यार इंसान को। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि इस शख्स को मैं क्या कहूँ, क्या नाम दूँ। जानवर भी होता है ना, वो सबसे पहले अपनी औलाद को बचाता है, और ये शख्स पता नहीं किस मट्टी से बना हुआ है कि इस शख्स ने अपनी औलाद, और औलाद भी वो जो कि मासूम बच्चे हैं, उनको कत्ल किया है अपने हाथ। नानी अम्मा मर गई है ना, तो अब आप भी उनके लिए मर गई हो, इसलिए शादी पे नहीं जाना। शादी पे नहीं जाना? नहीं, फिर बारात पहले भी वाले नहीं आने देते थे? नहीं, पहले शादियों पे आने देते थे। घर में वैसे आती थी आपकी अम्मी और आप लोग आ जाते थे?
नहीं, कभी कभी जब खुशी से भेजते थे तब आते थे। तो जो शख्स अपनी औलाद के साथ ये कर सकता है तो वो आप लोगों को किस तरह से ट्रीट नहीं, करते हैं? फ़र्क रखते थे। आप लोगों के ऊपर भी तशद्दुद किया था हाँ कभी? जी। आप पे भी करते थे तशद्दुद? हाँ जी। किस बात पर करते थे? यही कभी भाई बर्तन लेट उठा लिए उस बात पे हमें मारने लग गया। कभी आपस में जो झगड़े होते थे वो किस बात पर ज़्यादातर होते थे और तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था आपकी अम्मी को? किसी बात पे भी नहीं होते थे, बस कभी प्लेट के लिए, कभी ये चीज़ नहीं दी, कभी सालन में नमक कम है, मिर्च कम है, नहीं तो ये पानी नहीं रखा, ये इधर चीज़ क्यों रखी है, इधर नहीं रखनी थी, बस इसी वजह से। आप पढ़ती हो? हाँ जी। कौन सी क्लास में पढ़ रही हो? फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में पढ़ रही हो। तो आपके जो अखराजात कॉलेज और इसके मामलात वो कौन करता था? मम्मा। अच्छा, हाँ जी। तो उन्होंने कभी नहीं किए? कभी आपके कॉलेज नहीं आए, कोई खर्चा नहीं दिया, कोई इस तरह का मामला नहीं किया उन्होंने? नहीं किया। पंखा चला हुआ था, लाइट ऑन थी, अगर मुंह पे रिजाइयाँ दी हुई थी तो हमने समझा कि शायद ले गया है, वैसे बिस्तर पड़े हैं। सिर्फ बाल नज़र आए थे तो तब हमने देखा था। अच्छा, तब पता चल गया था कि कुछ हुआ है? लग रहा था ऐसा कि घर में कुछ कोई वारदात हुई हुई है कि उस शख्स ने ऐसा किया है कुछ? वैसे घर की सफाइयाँ तो सारी कर गया था कि अच्छा। कहीं किसी को पता ना चले। बस जब हमने शक्लें देखी दो बहनों की तो जाग निकली हुई थी मुंह से, तब पता चल गया। और भाई की साफ़ की हुई थी और भाई की स्किन सख्त हुई पड़ी थी और ठंडे हुए थे। गोलियां दी तीनों बच्चों को, जहर की। गोलियां पलटियां। तो कैसे हो सकता है एक बाप अपनी औलाद को कोई प्यार नहीं था बाप उसे नहीं ना अपनी- बने। हाँ, बाप बनता तो बाप ही है। हुणे बच्ची शदी आई है, इसनू अच्छे अल्फाजा नाल आख्या सो ऐसा कह चलो भेजदा पे। असा मेरा बेटा मेहंदी ते ही नहीं सदी, असा मेडी आई उसते ही नहीं सदिया। पहले कभी बताया कि उसके ऊपर कोई नहीं मेरा तशद्दुद होता है, इस तरह का सानू इस मामला है? बुलाई रखा है मेरा बेटा, इस सन नहीं दसिया। अगर ये दस देंदी असा एक दे ना रखिया, असा बच्चे ही लै लविया, तुहानू सद के पुलिस नू सद के इदले नू सद के कोई सानू जगह तो मिल ही जावे आ। सानू इस बेटी कोई नहीं दसिया, असा भुले रहे। असा हुण बच्चियां नू वेख के असा मर गए हैं। सानू कुछ नहीं हुण तो सारी रात नहीं समझी ओदे होंदियां भी इना बच्चियां दे ओनू भाई जुल्म भई ये सारी रात जागदी आई इना बच्चियां दे पारू भई इना ना मार गते ओ तो ओदे सक्के ए भुल गई है शदी इनाथे इना दी खुदा दी जिंदगी हाई बेटा ये बच गई ते उन्हां दी मुक गई। उन्हां दी असा वधा तो ना सी सकदे, लेकिन हुण सानू इना त्रेयां दा खतरा है। हुण सानू ओनू फांसी कई बार अपने पे लिए। ये देखिए एक दिन मेरे बेटे को मार रहे थे, कह रहे थे इसे घर से निकाल, ये उन्होंने टोका मुझे मारा था। अब मेरे ही औरत मैं आप लोगों को कैसे वार दिखाऊं कि मेरे जिस्म पे कितने वार उस इंसान ने किए हुए हैं अपनी औलाद के लिए। जो काम उन्होंने करना होता था मुझे साफ नहीं लड़ाई करनी है कुछ करना है अर्जेंटली बनाते थे। अगर मुझे कहते जो कुछ बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, अगर सब आप ये बताएं आपके साथ तशद्दुद होता रहा, वो शख्स आपको मारता रहा, टॉर्चर करता रहा, ज़हनी तौर पर भी तशद्दुद भी करता रहा, उसके बावजूद आपने कभी अपने भाइयों को नहीं बताया, आपने उसको नहीं कहा कि इस तरह से ना करो? कभी ऐसा नहीं हुआ? मुझे सिर्फ उन्होंने एक बात की हुई थी, इन्होंने टॉर्चर करके मेरी दूसरी शादी उसी ख़ानदान में कराई कि ये 2 बच्चियां कत्ल कर देंगे अगर हमारे लड़के के साथ शादी न। झूठ बोल रहे हैं, मुझे ये बात करते हैं। मैं इतना जुल्म बर्दाश्त करती थी, भूख प्यास करती क्या करता था? ये दूध की गाड़ी चलाते थे, मुझे नहीं पता इनकी कमाई कहाँ जाती थी। कभी मैं इनसे पूछ लेती थी तो उस दिन कयामत आ जाती थी। घर के पूरे बर्तन हमारे ऊपर तोड़ने, जब तक तोड़ते रहना जब तक इतने टुकड़े ना हो जाएं। आप यहाँ पर आ गई हैं और उसके बाद आपको पता कैसे चला है? आप वापस घर गई थी, क्या हुआ था? उन्होंने मुझे ना शादी हो गई, रुखसती के बाद इन्होंने मुझे फ़ोन किया। अब मुझे नहीं पता, उस टाइम मेरे बच्चों की आवाज़ नहीं थी। मैंने पूछा, मैंने कहा बच्चे कहाँ हैं? ज़िंदगी में पहली दफ़ा इस शख्स ने मुझे कहा मैं ज़ालिम हूँ, मुझे माफ़ कर दो। मोटे मोटे लफ्ज़ों में इन्होंने कहा कि मैंने ये जुल्म किए हैं आप पे, जानबूझ के किए हैं।
क्या मर जाओगी? मैंने कहा मैं कहाँ मरूँ, मैं अपनी औलाद के लिए ज़िंदा हूँ। मुझे कहते भी थे तुम पागल नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, अब मुझे माफ़ कर दो। मैंने एक तब मैं पिघल गई। मैंने कहा ये इंसान कभी ना माफ़ी मांगने वाला, ये सही हुआ बैठा है, मैं जाती हूँ। मैं करती हूँ टोपी वाला बुरखा, मेरा बुरखा गुम हो गया। मैंने कहा अगर मैं इस बुरखे में जाऊंगी किसी से मांग के, इसने कहना पता नहीं कहाँ से आई, ये मेरे 3 बच्चे इनके पास हैं, उनको नुकसान ना कोई पहुँचा दे। बच्चे पड़े थे, ऊपर उनकी रज़ाइयाँ थी, पंखा चला हुआ था, उन्होंने बच्चों को हटाया। मेरी बेटियों के मुँह से झाग थी, एक बेटा इधर पड़ा था, बेटियाँ उधर पड़ी थी। तब इन्होंने फिर घर आके बताया मुझे, मेरे भाई को मोहल्ले वाले उठा के ले आए, उन्होंने इन दोनों को, फिर उन्होंने आके इधर मुझे बताया। और जब हम गए हैं ना, हमने ताला खोला है, मेरे साथ छोटी बच्ची थी भांजी मेरी, हम गए हैं, ताला खोला है, लाइट भी जली हुई थी, पंखा भी चला हुआ था और रज़ाइयों में ना बच्चे सोए पड़े थे जैसे सोए हुए होते हैं। मैंने एक के हटाया ना तो वो अल्लाह के अज़ीज़ थे तीनों ही। देखते ही तो 3 महीने हो गए थे, मैं तो तरसा हुआ था, बच्चा भी नहीं मिलवाता था। को फांसी होनी चाहिए। इतना जोया तो ये हो सके मैं मुंह भी नाले दी नजर चली गई है। अस्पताल पे तो दिमाग खत्म हो गया। बच्चे इतने गली दे सहम गए कि कोई बच्चा बाहर नहीं निकलता, ना बड़ा ना छोटा, इतने डर गए बच्चे न वेख के। लेकिन इसका हल किया जावे कि इहो जे बंदे नूं शरेआम चोटना चाहिए। उस एडा बड़ा जुल्म किया, इतना बड़ा कदम उठाया, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੀ ਉਸ ਨਾਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। घर का खर्चा कौन पूरा करता था? ਇਹ ਬੱਚੀ ਸਿਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਦੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਆਪ ਕਰਨ 6 ਸਾਲ ਉਮਰ, 7 ਸਾਲ ਉਮਰ, 8 ਸਾਲ ਉਮਰ ਕੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਖਾਵਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਇਤਨੇ ਸਿਮੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, इसलिए 8 महीने मेरे को है ना, यकीन कर जाओ भी बच्चे इतने सिमे तो डरे हुए होंगे हैं ना कि उन्होंने छोटे छोटे मुँह होंगे हैं। बच्चे स्कूलों आवे ना, मैं आदि बच्चों खा पी लो, हाथ मुँह धो लो, बेटा तुम वर्दियाँ लहा लो, कपड़े पहन लो, ट्यूशन जाओ। लेकिन बच्चे जड़े ना डरे हुए, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हर वक्त बच्चे मैं नहीं, पूरे गली वाले को पूछ लो, बच्चे इतने सिमे उन्होंने स्कूलों के पूछो। क्या दरिंदगी है, क्या सफाकी है, क्या इसके जहन में ऐसा अनाज चल रहा था कि इसने अपनी बीवी को पहले बताया था कि अगर तू चली गई अपनी बहन की शादी पर तो मैं तेरे बच्चों को मार दूंगा अपने हाथ से। और इस शख्स ने वही काम किया। कोई शर्मिंदगी नहीं है तुम्हें? अब शर्मिंदगी है, कोई रोना नहीं आता तुम्हें? कोई ख्याल नहीं आता तुम्हें? रात को नींद आती है तुम्हें? नहीं। होना क्या चाहिए तुम्हारे साथ? सलूक होना चाहिए जो कुछ किया। और उस औरत के ऊपर तुम इल्ज़ाम भी लगाते हो, झूठे इल्ज़ाम भी लगाते हो कि वो सही नहीं थी, जो जिसके ऊपर तुम इतने साल तशद्दुद करते रहे हो, फिर भी वो तुम्हारे घर में रही है। तशद्दुद कोई भी नहीं है उस पर, कोई ऐसी बात होती पूरे जिस्म पे निशानात हैं, वो किसने मारे हैं? जो तशद्दुद होते हैं, अगर जो कुछ होता उसके साथ, तो वो आज से पहले, मैं कई साल पहले इस जगह पे होता। अगर मेरे इतने तशद्दुद होते, तुम्हें बर्दाश्त करती रही है वो। बच्चों से पहले भी हमारे घर में यही तू मैं होती थी जो आज तक थी। कभी अगर एक आधी झड़प में अगर लड़ाई हो ही गई है, इसमें ना कोई बच्चों का कुछ हुआ है ना कुछ हुआ, मेरा अपना ही नुकसान हुआ है ज़्यादा। उस पर कोई तशद्दुद अगर होता तो आज से कई साल पहले मैं यहाँ होता। कितनी दफ़ा मारा है उसको? घर में लड़ाई होती थी, इस बात में मैं कुछ नहीं कह सकता कि बड़ी बच्चियों को भी मारते थे? तो घर में लड़ाई, नमाज कुरान पे, हर बात पे तमीज़ हमने नहीं सिखानी तो किसी ने मार दो, यानी कि बच्चों को मारो, तशद्दुद करो, तशद्दुद तुम्हें कौन सिखाएगा? तुम्हें किसी ने नहीं सिखाया? मुझे नहीं आया, मुझे जो अच्छा समझ में आया, जो गुस्सा चढ़ा, जिस बात पे अकल पे पर्दा पड़ा, जो हुआ वो मैंने अपने आप के साथ हो गया। मेरा रिठाई देखें इस शख्स की कि बस पर्दा पड़ गया था मेरी अकल के ऊपर और मैंने उस वक्त जो समझ आ रहा था मैंने वो कर दिया। अभी भी ये शख्स इल्ज़ाम भी लगा रहा है उस खातून के ऊपर जो खातून इसके साथ रहती रही है, 10 साल रहती रही है। 10 साल इस शख्स को बर्दाश्त किया है उसने, उसके पूरे जिस्म पर निशानात हैं। और
تشدد کا نشانہ نہ صرف اس خاتون کو بناتا رہا ہے بلکہ اس کی جو پہلے خاوند سے بچیاں تھیں ان کو بھی اس شخص نے بارہا تشدد کا نشانہ جب ملزم کو ہم نے اریسٹ کیا تو اس نے دوران انٹیروگیشن یہ بات بتائی ہے کہ مجھے رنج تھا اپنی بیوی پر، تو اس لیے میں نے میرے گھر میں چوہے مار گولیاں پڑی تھیں، میں نے پہلے ان کو نیند کی گولیاں دیں اور پھر کھیر بنا کر اس میں مکس کر کے ان کو. اس کا اپنے گھر جانا، اپنی بہن کی شادی میں چلے جانا، وہی اناج تھا یا کوئی اور اناج تھا؟ یہ تو وہی کہتا ہے کہ میں نے اس کو منع کیا تھا کہ ادھر نہ جاؤ وہاں پہ، کیونکہ ادھر عابد حسین کے ساتھ وہ کہتا مجھے شک تھا کہ اس کے نجائز تعلقات ہیں، اور مجھے جو ہے اس کا ایک کارڈ اور میموری کارڈ اور ایک خط بھی ملا ہے. وہ خط یا وہ کارڈ، میموری کارڈ ملا آپ کو؟ نہیں ملا؟ کچھ نہیں، ہمیں کچھ چیز ایسی نہیں ملی. تو ملزم جو ہے وہ تو بہت چلاک قسم کا آدمی ہے. صحیح. اور اس کے متعلق اہل علاقہ بھی کہتا ہے کہ یہ جب جاتا تھا تو گھر میں بھی تالا لگا کر جاتا تھا. صحیح. شک کرتا تھا جی، اپنی بیوی پر شک کرتا تھا. تو دوران انٹیروگیشن اس نے یہی بتایا کہ مجھے اپنی بیوی پر شک تھا، جس کی وجہ سے میں نے اس کو منع کیا تھا کہ تم اگر چلی گئی تو تمہارے بچے نہیں بچیں گے. صحیح. اور وہی کیا؟ اور وہی اس نے کیا. تو ملزم جو ہے اب ریمانڈ پر ہے، انشاءاللہ اس کے چلان مکمل کر کے عدالت بھجوایا جائے گا.